یہ ہمارے ساتھ ایک مومن گئے تھے نے، انہوں پھر بیچارے آئے، یہ کیا انہوں کیا کچھ بچانے کی کوشش کر رہے، کیا دیکھیں گے۔ ہاں ایس کے ایف جی، سر آپ پھر سے ہاں جی، اگین جوائن ہوئے، آپ کچھ جب میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ایکچولی کیا ہے، میں جیسے ہی باہر نکلا تھا اس کے بعد آپ نے کیا بولا تھا، دیکھیے سسٹر میں آپ کو سمان کر کے سسٹر کہہ کے ہی نکلا تھا نا، مجھے پتا ہے کہ ہاں آپ مسلم ہونے کے بعد بھی آپ اس کا نان مسلم ہوئی ہیں، کوئی دقت نہیں، میں نے آپ سے کوئی شبد کہے، کوئی غلط نہیں شبد نہیں، کہا، لیکن اس کے بعد نان آپ لوگوں کے مسلم، اندر عادت کیا ہے، نہیں میری بات ہوں سن لیجیے سسٹر پلیز، ہوں آپ لوگوں کے اندر ویسے ہی ساحل کے اندر عادت ہے، ویسے ہی پتہ ہے نا ایڈم کے اندر عادت ہوں ہے کہ جو ویکتی کچھ نہ کہہ کے جائے تو آپ لوگ بڑا ہوں سمان دیتے ہو، جو کہہ کے ہوں جائے تو آپ لوگ اس کو ہوں گالیاں دیتے، میں آپ سے کچھ کہہ کے نہیں گیا تو نہیں، میں نے آپ سے یہ گالی کہا کوئی بات نہیں ہے گالی نہیں سسٹر۔ دی، گالی نہیں دیے، ایک منٹ بھائی، ہمارے ایس کے شانتی ہاں رکھو، آپ نے کیا کہا کہ تھا، آپ آج بتائیے کیا کہا تھا آپ آپ نے؟ جوائن ہوئے، آپ کو پتا ہے یہ چینل فاطمہ جی کا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سائل کس وقت میں آتے، ایڈم بھائی کس وقت آتے، آپ کو وہ ہفتے میں 2 بار آتے، آپ کئی بار ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر چکے، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ویک میں کب کب آتے۔ فاطمہ اگر جی آپ فاطمہ کی چینل پہ آئے ہیں تو میں آپ کو ٹاپک بتائی کہ مال غنیمت آپ لوگ کسے کہتے، آپ کا رسول مال غنیمت کو کیا نام دیے تو آپ لوگ اس کو بولتے، تو یہاں پہ ہم ذکر مال غنیمت کا کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو میں میں نے آپ کو صحیح طور نہیں کر کے پہ میں نے آپ کو صحیح یعنی طور پہ منع کیا مسلمانوں تھا، کے میں نے پاس، آپ کو میں مسلمانوں نے آپ کے کو صاف طور پاس پہ میں نے آپ کو سسٹر میں نے آپ کو صاف طور پر منع کیا تھا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پوچھا تھا تو آپ بولیں کہ آئی تھنک شاید وہ آ سکتے ہیں، آپ نے یہی بولا تھا نا، اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ کہا، میں نکل گیا آرام سے، کوئی دقت نہیں تھی نا، آپ نے وہاں سے بعد میں جب میں نکل گیا آپ نے کیا بولی کہ آدھے مسلمان تھے یہاں پہ یہ ڈرامہ کرنے آئے تھے، آپ اس طریقے کی آدھے ٹون کیوں کرتی مسلمان ہیں؟ نہیں، دیکھیے آپ اگر آپ فل مسلمان آپ نے ہوں کیا گے، کہا تھا، آپ فل بتائیے کیا مسلمان کہا تھا ہوں آپ گے، نے؟ تو تمہارے پاس ابھی اسلام کو دفاع کرنے کا نہیں ہے تمہارے کا نہیں، یعنی یہ سسٹر ٹاپک پہ سسٹر یہاں سسٹر ہم بہت کچھ ایویڈنس ہوتی ہیں دکھا رہے تھے، تم کو اگر سسٹر، اسلام کو دیکھیے دفاع کرنا ہے تو دفاع سسٹر کرنا تھا، ختم سسٹر جس بات طریقے سے ادھر۔ میں سائل سے بات کر سکتا ہوں آپ سے نہیں کر سکتا ہوں، سمجھیے آپ کئی کو آپ آپ تمہارے سسٹر ہیں اسلام میں جس عورت کو عادی ناقص عقل کہنے کی وجہ سے بول رہی، اب میں تمہارا بہت کچھ اسلام کہوں تو گا یہی پھر سن نہیں بتاتا۔ سکتی ہیں، چلیے چلیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، پھر میں ویسے ہی جیسے ساحل سے بات کرتا ہوں اسی طریقے اسی لینگویج سے بات کروں گا، پھر پتہ سماج کیا کہے گا کہ عورت سے غلط لفظوں میں بات کر رہا ہے، کریں گی آپ بات؟ بولیے اسلام کی مجھے اصلیت پرمیشن پتا مجھے چلتی۔ پرمیشن نہیں مجھے پرمیشن دیجیے کہ میں آپ ہاں سے کچھ جی، بھی کہوں، پھر آپ ارے جھیلیں گی، بولیے۔ ایک سیکنڈ ٹھنڈ رکھو مسٹر ایس کے ایس جی، ٹھنڈ رکھو، جذبات تمہارے اتنے وہ ہو رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم کو پتا ہے جب تم جوائن کر رہے ہیں، تم ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کس کا کون سا چینل ہے آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے، اگر آپ اسلام کو دفاع کرنا چاہ رہے تو کرو، میں مال غنیمت پہ بات کر رہی ہوں بلکہ آپ کو پہلے بول دیے، ہم یہاں ریفرنس دے کے بھائی کیا ہم بحث ہم اورلی کرنے کو بیٹھے، کیا ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے بات کرنے کو تو بات رکھو، میں جس طریقے سے ساحل سے کرتا ہوں ان سے کرتا ہوں، ارے آپ کس طریقے، اگر آپ میرے سے بدتمیزی سے کریں گے تو آپ کا اسلام تو آپ کو سکھاتا ہی یہ ہے عورت کی عزت نہ کو کرو، عورت کو مارو، عورت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تم لوگ تو عورت کو آدھی عقل مانتے ہیں، تم عورت کو اپنے برابر یا سماج میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے سمجھتے کہاں، اگر ایسا سمجھے تو آرام سے سکون سے زندگی سے بات کرو، چلانے سے کیا ہوتا، کیا اسلام ثابت ہو جاتا آپ کے چلانے سے؟ ایس کے ایف جی، آپ کے چلانے سے کیا کہہ اسلام لیا ثابت ہو جاتا؟ کہہ لیا آپ نے، باہر نکالنے کے بعد کہہ لیا، دن بھر پورا جی بھر کہہ لیا آپ نے، اب آپ نکالیں گے نہیں، اگر آپ کو قسم ہے جس کو بھی مانتی ہو آپ میں کسی نکالیں کو گی تو بھی نہیں نہیں، میں تو مانتے، ہوں، میں میں کسی کو ہوں نہیں آپ سے، مانتے ارے کسی کو بھی نہیں مانتی، ارے ماں باپ کو نہیں، تو اپنے مانتی ہوگی نا، اپنے ماں ہاں باپ کو تو میں مانتی ہوگی نا،
तुम किसको जिसने मानते, तुम्हें पैदा तुम्हारा किया। तुम्हारे रसूल का वास्ता, तुम ऐसा इस्लाम को साबित तू आराम से मुझे फिर करो। मत निकालना, तू मुझे मत निकालना, फिर मैं अपनी बात कह लूं। बोल, अ, मानेगी तू? मैं बात बताऊं? अरे फिर बोल। हाँ, इस्लाम को साबित करना चाह रही तुम, अपने माले गनीमत को क्या अरे कर सुन यार, किस तरीके से इधर सुनो, साबित कर रहे? तुम लोग पता है इतने बेगैरत इंसान हो। वो साहिल भी है, वो हाँ। एडम भी, और तुम भी। पता है जितनी भी लड़कियां जो इस्लाम छोड़ के हम्म, जाती हैं, ये सारी हम्म। बेगैरती हो जाती हैं। तू भी बेगैरत हो चुकी है। मैं इतनी देर से बार तो अरे देख रहे, SKF कौन से चैनल की, और नाम चैनल रख लिया SKF, नाम क्या रखना नहीं मालूम। ना मेरा बिग बॉस, ना सुपरमैन बेगैरत है, ना कुछ है। तुम्हारे पास अब दिफा करने बाकी कुछ नहीं रहा, तो तुम लोग जो है सो अब एक नया तरीका ढूंढ लिए। बेगैरत, बेगैरती तो तुम लोग कर रहे, औरतों को लूटना, मारना, करना, बेहुरमती करना, ये सब तुम्हारे इस्लाम की चीजें हैं भाई। ये तुम्हारे को बता रहे हैं। इस्लाम, इसी चीज से तो, तुम्हारे ये चीजों से तो हमारे को खबर लगी तो हम छोड़े। साबित करने से ज्यादा तुम बेगड़ती वो ये गिनने को आए। कुछ नहीं रहा इस्लाम के आयत है ना, आयत पे बात करना नहीं आ रहा तो इधर आ जा रहे। बात सिर्फ कुरान पे कर सकते, हदीस पे कर सकते, तो करो। अगर तुम्हारे को हमारे पर्सनल एक्टिविटी पे बोलने का, ये आपको कोई राइट्स नहीं है क्या? हम आपकी पर्सनल एक्टिविटी पे बात कर रहे हैं क्या? खाली तुम्हारे को इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं कुछ? एक बार चांस देते हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो, लास्ट टाइम हम आपको ऐड करें। मैन बात, देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सभ्यता से कह रहा हूँ, सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोलता हूँ। देखिए, मुझे ही पता है, मेरे घर में भी माँ बहनें होती हैं, तो मैं आपको कभी गलत नहीं कहता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति की एक इज्जत होती है, आपकी भी इज्जत है। मैं आपने छोड़ इज्जत दिया वो है आस्था। वो सब नहीं, अभी वो सब जान दो। मैं सवाल माले गनीमत का कर रही हूँ कि माले गनीमत किसको कहते थे, आप उस पे बात करिए। मेरे को किसी नसीहत या गनीमत, कोई माले दूसरी चीज गनीमत। की जरूरत अरे नहीं है। सुनिए, अब आप सुनिए ना। अब आप सुनिए ना, जब आपने क्वेश्चन कर दिया उसका शांत हो जाइए। माले गनीमत ये होता था जब हम लोग, जो रसूलुल्लाह जब जाते थे फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे, तो वहां पे जो भी जो औरतें थी या बच्चे थे, तो वो जो मिलते थे उसको हम लोग माले गनीमत कहते थे। ठीक है, ये बोलते थे। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, तो हम भी यही बता रहे हैं, औरतों को, बच्चों को, वो चीजों को बांट लेना, फिर एक 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 औरत को चार चार लोग इस्तेमाल करना, फिर उनको दिल भर गया तो तलवारा खरीदना है, घोड़े खरीदना है जंग के वास्ते, तो उन गुलामों को वापिस से भेज देना। माले गनीमत, इस चीज को तो कहते आप लोग, सीधा सीधा ये नहीं बोलते कि माले गनीमत में ये लूटम लाटी का माल रहता था। इसको तय्यब है आपने, बोलते हैं। आप लोग को किस तरीके से ये तय्यब लगा? चलिए ठीक है, आपने बात कह ली, अब मैं बात कहूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि वहां पे जो जो भी औरतें और बच्चे मिलते थे, ऐसा नहीं था कि उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे। रसूलुल्लाह खुद शादियां करते थे, लोगों को बोलते थे कि शादियां करो उन लोगों से। जो औरतें जो बची हैं, जिनके पति मर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके जो ख्वाविंद हैं जो वो मर चुके हैं, तो उनको मरने के बाद जो उनकी जो बेगमें हैं, तो वो बची हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो विधवा हो चुकी हैं। तो उनसे किस रसूलुल्लाह आयत में खुद है कहते थे कि ये? किस किस रेफरेंस दे, रेफरेंस दे। रेफरेंस नंबर तो मेरे को याद नहीं है। हम ओके, तो रेफरेंस ये दिखा रहे हैं, ओके, हम रेफरेंस चलिए दिखाते हुए आप दिखा ये दीजिए, बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए, इनके साथ चलिए ना आप दिखा कोई दीजिए। शादी होती थी ना कुछ होता था, इनको खरीदा और बेचा जाता था, इस तरीके से इन औरतों को बांटते थे। तो ये क्या क्या बात हुई? ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। बल हम जो भी हदीसें दिखाए अच्छा, उसमें कहीं अच्छा, ऐसा अच्छा, शादी अच्छा, कर लो कराओ बोल एक के बात कहीं बोलूं, पे नहीं है। एक बात बोलूं। नबी पाक ने ये कहा था, खुद कहा था कि देखो, कहीं ना कहीं कोई भी अगर गुलाम है उसको आजाद करना ज्यादा अच्छा है,
اس کو غلام رکھنے سے بیٹر ہے. ارے غلام نہیں نہیں، رکھنے ہم سے تو بیٹر ہے ایک اس کو آزاد حدیث کرنا. نہیں، ہم ابھی ایک حدیث یہ بھی دکھا دیے. غلام جو ہے سو کوئی مرنے والا آدمی اپنی جو ہے سو وصیت میں لکھ کے مرا تھا، میں مرنے کے بعد میرا غلام میری موت کے بعد غلام آزاد ہے. تو آپ کے رسول اللہ کیا دکھائیں گے کرے، آپ؟ وہ غلام کو، ہاں دکھائیں گے حدیث آپ؟ نمبر دکھائیں گے؟ اسکرین پہ دکھائیے ہے، دکھائیے دیکھیں. دکھائیے. ایک منٹ. چھوٹا ہے تھوڑا سا، ہلکا زوم کریں گے آپ پلیز؟ ہاں بالکل تھوڑا سا کریں زوم گے نا، کریے. آپ بھی موبائل سے کر سکتے، کریے. تو وہ غلام نہیں، کو میرے انہوں موبائل میں بیچ میں کر دیے. رہا ہوں. ایک میں کر تو رہا ہوں لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے ایکچولی. اگر آپ زوم کر سکیں تو آئی تھنک شاید ہو سکتا ہے میرا فون تھوڑا سا نہیں کام کر رہا ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے زوم کریے. ہاں کریے. تو آپ کیا کریے، میں آپ کو نمبر بھی دے رہی ہوں، اگر آپ اپنے پاس سے کھول بھی سکتے تو کھولیے. نمبر بتائیے. اچھا میں چلیے بتائیے. ہاں نہیں لا رہی، میں اسکرین پہ تھوڑا میں سا زوم دوسری ٹیب کرتے میں ہیں جا کے جتنا ہو رہا. دوسری ٹیب میں جا کے میں کھولوں گا. پھر میں تھوڑا سنو پھر میری آواز نہیں آئے گی. ہاں. صحیح البخاری صحیح کی، البخاری کی ہے کیا؟ صحیح البخاری ہاں کی ہے کیا؟ ہاں. کون سا نمبر ہے؟ 2534، جس میں رسول اللہ 2534. فرما رہے ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنی غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے ایک ہی سال میں مر گیا. پھر اس کو 1 سال کے ہاں. بعد وہ غلام مر گیا. صحیح البخاری کی کتنے بتایا تھا؟ 2435. 2534. 2534. اوکے ٹھیک ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں. رکیے مجھے لائن پہ رہنے دیجیے. 2534. ہاں. تو ارے ہمارے ساتھ جو ویو جڑے ہیں، کہ ہمارے ساتھ کوئی مومن اپنے اس کو ثابت کرنے جا رہا ہے. کیا آپ لوگ بتا سکتے کہ انہوں ثابت کرنے والے ہیں اسلام کو، یا انہوں ایسی کیا آیت لے کے آنے والے ہیں؟ کیا تو انہوں یا کوئی ایسی مست نئی والی جلیبی بنانے والے ہیں؟ دیکھتے کہ ہم یہ مومن کی کون سی جلیبی بنائیں گے. ہمارے KFC بنے رہیے ہمارے ساتھ. KFC کے ساتھ. KFC میں آیا. تو ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم ہاں جی. اتنے. ہلو. ہاں جی. ہاں صحیح لکھا ہوا ہے، جو آپ نے بتایا وہی چیز لکھی ہوئی. ہاں. تو اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی یہ بتائیے. کہنا یہ چاہ رہے تھے، آپ تو بولے کہ رسول جو ہے سو غلام رکھنا اچھی بات نہیں ہے، ان کو آزاد کر دو بول کے بولے. لیکن یہاں پہ ایک مرنے والے آدمی کی سے پہلے انہیں اپنا آزادی کے اس کو دینے کے وصیت، یعنی اس کی وصیت تھی کہ غلام کو آزاد کر دو، لیکن اس کے بعد بھی اس کے رسول نے اس کو بلایا اور پھر بیچ دیا. ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے. آزاد غلام کو بھی آپ کے رسول اللہ نے بیچ دیا، جو مال غنیمت انہوں میں نے آتے تھے. انہوں نے بس سنو، آپ نے آپ کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے تھے کہ مرنے کے بعد اس ویکتی کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا اس کو باہر کرنے سے بیٹر ہے کسی کو دے دو. لیکن یہ مرنے والا بیچارہ تو پھر اس کے لیے آزادی کا فرمان بولا، غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا.
नहीं, इस बात पे तो मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ। ये चीज मेरी हाँ एडम से ही बात हुई थी, एडम ने भी कहा था। इसमें थोड़ा सा मुझे भी क्लियर नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैं जो समझ रहा हूँ कि क्योंकि वो व्यक्ति मरने वाला था, अब उसकी जो व्यक्ति उसके साथ में था, ठीक है ना, जो गुलाम उसके साथ में था, तो कहीं ना कहीं उसको उसका परिवार चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो वो कहाँ से चलाता? अरे तो इसलिए गुलाम के पास कौन सा परिवार, गुलाम के पास कहाँ पर, गुलाम यानी रात दिन खिदमत में रहना, ना उसकी कोई शादी रहेंगी ना कुछ रहेंगे। गुलाम मीन्स उसकी जिंदगी के ऊपर पूरा आपका कब्जा है, नहीं, राइट हैंड अगर प्रोसेस, अगर अगर यहाँ नहीं पे नहीं, गुलाम आ जाते। यहाँ पे सिस्टर आपको रोकूंगा मैं। पता है 1967 तक जो यहाँ पे अरब में जब गुलामी का चैप्टर चल रहा था, उस समय जो गुलाम थे उनकी पत्नियां भी थी, उनके बच्चे भी थे। अगर आप अगर आप देख सकती हैं, अगर आप ये कहें कि क्या अगर है हम लोगों की 19 सुन्नतों के साथ 19 1967 तक, सऊदी का, 1967 हाँ सऊदी में सऊदी का, चलती थी ठीक नहीं। है, सऊदी में चलती थी। तो एंड में जो बंद हुए थे ना ये सारा कुछ गुलामी वाले सिस्टम, तो उस समय तक गुलामों की पत्नियां भी थी और बच्चे भी थे। आप ये कैसे कह सकती हैं? आप गूगल में डाल के देख लीजिए, ये तो आप गलत बोल रही हैं। एक मिनट हेलो। मिस्टर, हाँ हाँ मैं हाँ आपसे पहले हाँ। तो आप मेरे को और सुकून, जब आपके रसूल जंग में उनके सिस्टर पहले, बीवियों को नहीं या सिस्टर उनके पहले, सबको सिस्टर मारने पहले, के बाद सिस्टर में सिस्टर कोई, सिस्टर प्लीज 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 सिस्टर, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए आप। देखिए जैसे आप लोग पूछते हैं ना मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे ही आप भी प्लीज जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा? 1967 तक जो भी गुलाम होते थे उनकी पत्नियां भी होती थी, उनके बच्चे भी होते थे। आप बोलिए यस और नो, बोलिए आप, तुम्हारे बोलिए। रसूल तुम खत्म कर दिए बोले तो सिस्टर सिस्टर 1967 तक सिस्टर गुलामी सिस्टर चली कैसा मिस्टर चलिए, केएफ। हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, चलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा था कि गुलामों के कोई बीवी बच्चे नहीं होते थे। मैं ये कह रहा हूँ, इस बात का जवाब दीजिए ना आप। ए अच्छा, बताइए। गरम तवे हाँ पे बताइए। बैठने से कुछ नहीं होता। मैं ये कहा गरम तवे देखिए, पे हूँ? मैंने आपको सुनो, नॉर्मली कहा मैंने। र, हाँ, जंग में मारने के बाद जो लोगों को कैदी बना लेते थे वो उनको अकेले तो बांट देते थे, उनको रखते ही नहीं थे, बच्चे बांटते, बीवियां बांटते थे, गुलामा भी बांट देते थे। तो वहां पे उनकी कोई फैमिली का जिक्र ही नहीं है, उनकी फैमिली पूरे वो हो जाती थी, वहां कुछ नहीं थी। आप बोल रहे हैं कि अच्छा एक फैमिली बात थी, बताइए। फैमिली नहीं हो, ओके जंग में सब चित्तर बित्तर होने ओके के बाद का वाकया ओके है। ओके, अब मेरी बात सुनिए, आगे मैं बताऊंगा ना। आपने कहाँ तक सुना? आपने, क्योंकि मुझे एडम ने भी कहा था कि जो बच्चे थे, लड़के थे, उनके नीचे के बाल वगैरह या कुछ भी देख के, सॉरी, आप महिला हैं, हाँ इसलिए मैं हाँ, आपके सामने नहीं क्योंकि कहना चाह रहा हूँ। बच्चे ठीक है, छोटे ठीक है। बच्चों को देख के मेरी छोड़ मेरी दिए, बड़ों मेरी को प्लीज, मार दिए। मेरी प्लीज बात सुन लीजिए, मेरी प्लीज बात सुन लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपकी बात सुनिए, आप भी मेरी बात सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने वहां तक तो सुना, उसके बाद की कोई हिस्ट्री लिखी हुई है कि उनके बच्चे हुए या नहीं हुए, उनकी शादी हुई या नहीं हुई, ये कहीं लिखी हुई है? बताइए आप। ये दिखा दीजिए, उनके बच्चे नहीं होते थे, दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा, अभी इस्लाम छोड़ दूंगा। और बोलिए, दिखा दीजिए, चलिए। ये दैट्स इट। देखिए, आपके नहीं, हिसाब मैंने से आपसे, मैंने नहीं, प्लीज 1967 प्लीज तक प्लीज सऊदी में प्लीज प्लीज, गुलामी थी। आपके हिसाब से 1960-70 तक गुलामी थी, तो गुलामी यहाँ तक चलते आई। आप अपने मुंह से बोल के फिर मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? आप खुद ये साबित कर दिए कि अभी तक एक सदी पीछे तक तुम्हारी गुलामी चलती थी, अभी इसको 100 साल भी पूरे नहीं हुए। तो आप बोल रहे हैं फिर, आप खुद प्रूफ कर दिए कि गुलामी अब अच्छा, तक होती थी, चलिए चलिए। खत्म। मैं आपसे केवल इतनी बात पूछ रहा हूँ कि आप मुझे केवल इतना दिखा दीजिए कि जो गुलाम थे उनकी शादी नहीं होती थी, उनके बच्चे नहीं होते थे। मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ, दिखा दीजिए मुझे। दैट्स इट, आप खत्म बात। मेरे को दिखा दो, गुलाम आप होते दिखा थे, दीजिए ना। उनके बच्चे थे। नहीं, आप ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं, आप दिखाइए ना मेरे को। देखो तो मैं कौन आप होता हूँ? लोग
ये आप बताइए, लोग को वैसे के ही मैं पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं नहीं है सिस्टर, इस्लाम को साबित अच्छा करने के लिए, कुछ ये भी एक बात आयत, बताइए कुछ आप। भी अच्छा, हदीस बचीश नहीं। देखिए हम्म मैं बताता हूँ, आप ये बताइए, हमेशा जैसे साहिल कहते हैं, एडम कहते हैं कि जो क्वेश्चन करता है उसको जवाब देना चाहिए, ठीक है? जैसे हम्म आपने क्वेश्चन हम्म किया कि गुलाम होते थे उनकी शादियां नहीं होती थी। मैंने कहा आपसे केवल इतनी बात कही, आप मुझे इतना दिखा दीजिए उनकी शादियां नहीं होती थी, उनके बच्चे नहीं होते थे, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप दिखा दीजिए, अभी हाल इस्लाम छोड़ूंगा, आपके मुंह पे छोड़ूंगा। और बताइए, दिखा दीजिए आप दिखाइए ना। ये देखो नहीं तो मिस्टर, मैं, हाँ, नहीं सुनो, मिस्टर अब नहीं, बोल दिए अब ना। आप पता भाग चुकी हैं। काली मिर्ची खा के आए, लाल मिर्ची खाए, तुम्हारे रसूलुल्लाह गुलामी के लिए उन लोगों को इस चीज का राइट्स कहाँ था? एक उनको इस्लाम लाना या छोड़ने पर भी पूरी चीजों के ऊपर पाबंदी थी। वो गुलाम रहते थे या उनको कर दिए जाते थे। अगर उनके शादियां होते थे या बच्चे रहते थे, आपका सवाल ही मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो वो गुलामी के तो अंडर में थे ना 1976 तक तुम्हारे हिसाब से, तो तुम्हारे को उनकी शादियां और उनके बच्चों से करना लेना देना क्या है? अगर आप प्रूफ कर सकते तो करो, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि गुलामों के साथ जुल्म किस तरीके से होता था, उनको मार देते थे, उनके साथ उनको बेच देते थे, काले के बदले में एक गोरे के बदले में दो काले, यानी तुम इस तरीके से उनकी इंसानों की ये वैली थी बोल के मैं बता रही हूँ आपको। तो वो शादी होना या ना होना मेरा सवाल नहीं है, गुलाम थे या नहीं थे, आप इसका जवाब दे दो, गाले माले सिस्टर गनीमत में बिकने सिस्टर वाले सिस्टर चीजों की तरह। मैं केवल हम्म, मैं केवल एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि आपको कोई जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में। मैं केवल एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक अभी है, जवाब तुम्हारे को दीजिएगा, हदीस, अदरवाइज अभी आपको एक हदीस दिखाए कि गुलाम को जो है सो आजाद कर दिए, ये जानकारी नहीं है, बल्कि आधे जानकारी ना पाओ जानकारी वाले तुम लोग आके हमारे को जानकारी दिखाएंगे। अभी हम एक स्क्रीन पे हदीस दिखाए, तुम्हारे को वो उसके बारे में पता नहीं था, आप मेरे से नंबर पूछे। आई एम बेटर देन यू मिस्टर SKF, अपनी जानकारी को जान के आओ, यहाँ हमारी जानकारी को देखने मत आओ तुम लोग, तुम्हारे इस्लाम में क्या भरा पड़ा है इसको देख लो। सिस्टर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चलो हर तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ हर तरीके से, लेकिन मुझे प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल इतनी बात पूछ रहा हूँ, अगर वाकई में आप इस्लाम की जानकार हैं, आप यहाँ पे चैनल खोल के बैठी हैं, इस्लाम को नंगा करने के लिए बैठी हैं, क्योंकि जैसे ये लोग कहते हैं, एडम कहता है, साहिल कहता है, वैसे ही आप भी बैठी हुई हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ विनती है, आप मुझे इतना बता हम्म दीजिए कि क्या हम्म इस्लाम में हम्म जो गुलाम होते थे, क्या उनको शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? अगर आप ये दिखा देंगी, मैं इस्लाम हम्म अभी आपके सामने मुंह पे छोड़ दूंगा। आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपके सामने कह हम्म। रहा हूँ, लाइव में कह रहा हूँ, बता दीजिए आप प्लीज। देखो भाई, सबके सामने इन्हों बोल रहे हैं गुलाम को जो है सो शादी नहीं कर सकते थे बोल के, मैं इनको 2-3 प्रूफ दे दूंगे। अभी अभी इन्हों बोले कि अगर मैं ये प्रूफ पेश कर दूं तो ये ईमान छोड़ने वाले यानी एक्स मुस्लिम बनने वाले हैं। आप सब लोग सुन लिए ना इनकी ये बात, और आप भी एग्री कर रहे हैं ना कि ये चीज का दावा आप इसे फिरेंगे तो नहीं? सुन लिया, सुन लिया, सुन मैं लिया। सामने हूँ, सुन रहा हूँ। चलो, अभी हाँ सुन लिया, आप आप आगे बीच बताइए। में से छोड़ के जाएंगे नहीं, आप धैर्य अरे रखेंगे, नहीं जाऊंगा, आप मर्द का सुकून बच्चा से। हूं तो नहीं जाऊंगा। और सुनिए, हाँ। सुनिए, अगर आप औरत की बच्ची है तो आप भी दिखाएंगी, मर्द का बच्चा हूं तो मैं भी छोड़ के जाऊंगा। और बोलिए, दिखाइए। अच्छा, तो पहला प्रूफ आपकी कुरान से दे रही हूँ मैं, कि पहला प्रूफ आपकी कुरान में है कि अपने अपनी बीवियों, अपने लौंडियों में तुम्हारा रब फर्क बताता, अपनी बीवियों को और लौंडियों में। बीवियां शादीशुदा है, लौंडियां शादीशुदा नहीं है। अरे मैं पहले तो जानता यहाँ हूँ, पे आगे एक बताइए आप। शादी बता, आप तो मुझे ये और एक बताइए, और बैक एक करके बात। मिस्टर, एक सेकंड,
एक सेकंड, आपको मालूम है ये आयत स्क्रीन पे भी आ गई। अरे देख मैं रहा हूँ मैं। आपको ये बता रही हूँ, सुनो। हाँ, तो यहाँ पे लौंडियों और बीवियां वर्ड यूज किया गया, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के। तुम इन पर कोई मिलावट नहीं, तुम लोग दोनों में से किसी एक के साथ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यहाँ पे है सुनो, आयत, यहाँ पे सिवाय आपको रोकना, अपनी बीवियों और यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आप पता है बेमतलब की बात करें, मैंने कहा गुलाम की शादियां नहीं होती हैं। ये बताइए आप, देखो लड़की, ये तो लड़की पक्ष वाला बता दिया आपने ओके ओके कि ओके, गुलाम। अब स्टॉप, हाँ, आराम से, लड़के आराम की से, बताइए। हाँ आराम बताइए। से, हाँ आराम से, बताइए। सुकून से। हाँ बताइए। अब आराम से इसके मैं ऊपर हूँ, आप क्योंकि हाइपर हो रही हो ना, हाइपर तो आप हो रही हो, मैं थोड़ी ना हो रहा हूँ। नहीं नहीं, ये देखो बताइए आप। समझ में नहीं आता ना। शांत हूँ मैं, बताइए आप। तो सुनो, तुम जितना भी बोल रहे हैं कि तुम गुलाम, यहाँ पे लौंडिया है, ये लौंडिया कौन है बोलो मेरे को। मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया, वहां पे लड़की है जो गुलाम है, उसके लिए ये लौंडिया रसूल कौन अल्लाह है, ने कहा है। ये लौंडिया कौन लड़कियां औरती हैं? हैं, लड़कियां, तू भी लौंडिया थी ना, इसीलिए तो तू मरी थी वहां पे। तू भी तो एक प्रूफ दिए, हजम नहीं हुआ। असल में तुम लोगों के पास तुम्हारा इस्लाम ऐसा अंधा, ऐसा फसाद, औरतों को लौंडिया कहने वाला, इज्जत नहीं करने वाला, ऐसा इस्लाम है। तुम लोग ऐसे इस्लाम को बचा भी नहीं सकते जो तुम्हारे खिलाफ आयते हैं। किधर भी समझ, मैं मेरे को लौंडी बोलने या बनाने वालों की खबर मैं अपने हाथों से खुद देता हूँ। मैं खबर हाथों से खुद दे के उसको दफना देता हूँ। किसी में इतना दम नहीं है कि हमारे को कोई बोल दे या कोई कर दे, हम सुन ले या झेल दे। हम उनमें से नहीं है बाबू। तुम्हारी जोरू सुन ली होंगी, लौंडिया है तुम बोले तो। यहाँ पे ऊपर नीचे दो तरफ भी बजाती फातिमा जी। फातिमा जी का नहीं, यहाँ आके तुम ऐसा बोल दिए तो नहीं होता। रफ लैंग्वेज सुने ना, तुम्हारे जोरुओं को लौंडिया बनने से बचाओ। अभी दूसरों के ऊपर उंगली उठने से पहले अपने बीवियां, अपने बहना कब बनने वाले हैं देखो। तुम लोग इस्लाम छोड़ते, एक प्रूफ बता देते निकल गई। अगर हाँ, हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, इन्हों बोला गुलाम, पलटी मार रहा ये बंदा, गुलाम लौंडियो मर्दों की शादी। लेकिन ये लोग जो औरतों को पकड़ के लेके आते थे, तो उनको तो गुलाम लौंडिया बोल के उनके सब औरतों को तो कैद कर लेते थे। गुलाम मर्द की शादी नहीं होती थी बोले तो। गुलाम मर्द के लिए तुम लोग कौन सी, और इससे पहले भी ये सवाल उठ, कौन सी औरतें देते थे तुम्हारे पास? उनको मुहैया कराने के वास्ते कौन सी औरतें होती थी? तुम तो उनकी औरतों को यूज कर रहे थे ऑलरेडी, तुम अपने कब्जे में ले लिए थे, मलकत यमीन है बल्कि। तो फिर उनके लिए कौन सी औरतें बाकी थी? उनके लिए बाकी रहने वाली औरतें कौन सी है? तुम उनका कबीला तो अपने अंदर अंडर में ले लिए, बच्चों को बांट दिए, औरतों को बांट लिए। तो वो मर्दों के लिए बची कौन सी थी? उनको था ही क्या बचने के लिए? उनको भी घर के कामा लगाते थे। अगर एक आध को कोई आजाद कर दिए पैसे लगा के, या वो अपना जजिया दे के आवेश में कुछ आजादी हासिल कर सकता था, वो एक आध थे, फिर वो भी गुलामीज बनते थे। तुम लोग के बस की बात नहीं है भाई। आके सीधे सीधे मान लो, हो भाई है हमारे इस्लाम में गलती हो गई, जलने से क्या फायदा। हमारे को भी शुरू में तकलीफ हुई कि इसके अंदर ऐसे चीजें हैं, देख के हम छोड़ दिए। तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लो, जान दो क्या करना है, बल्कि मान लो ये बातों को सब। अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, झूठ है ये किताबें, बस झूठ है। मान लो इस बात को, खत्म। कई को टेंशन ले लेते। तो हम थोड़ा ये आयत देख लेंगे। हमारे अद्वैत जी कुछ निकाले थे, वो तो मोमिन से होने वाली बात नहीं है, जान दो उनको, छोड़ो।
दिल पे मत ले यार, उनके बस की बात नहीं है। तो हम वो देख लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई अच्छा मोमिन आता है और एक कोई आए तो हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो स्ट्रीम क्लोज कर देंगे इसके बाद में। हाँ, फातिमा जी, am I audible? हाँ, आप Am I audible? सुन पा रहे मैं, हाँ आ रही आवाज आ रही। So, first of all, Imam Qurtubi is of the opinion that slaves can be married against their will, and I can show some of the things that marrying with not marrying and marrying without will is very dangerous. So क्या बता रहे हैं आप इसमें? I want to हाँ, इनको ये देखो अद्वैत जी, मैं थोड़ा आपसे बोलते हुए, ये बंदा क्या बोला, प्रूफ दियो बोला ना, मैं एक प्रूफ दे दो, एक्स हो जाता हूँ बोला। बातें देखो, एक्स होना है तो तुम्हारी किताबों की पढ़ाई देख के, प्रूफ देखते आउट हो गया मिजाज, किधर की चले गई पटरी, है नहीं? तो ये क्या है अभी? हाँ, आप करिए, रीड इंग्लिश में करिए। हाँ, yes. So, Quran 24:32. On this matter only, that Quran 24:32, Surah An-Nur. It said, "Marry of the free singles among you." So, who are free, marry them, as well as righteous of your bondmen and bondwomen. If they are poor, Allah will enrich them of His bounty. Allah is bountiful and all-knowing. Now, marry of the free singles among you. So, if they are free, then marry them. And as well as the righteous of your bondmen and bondwomen. So, who determines who is righteous? The master determines who is righteous, who is not righteous.